Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में गरमाई राजनीति, शंकर घोष ने गौतम देव के आय स्रोत पर उठाए सवाल। भाजपा की जनसभा, समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल पर साधा निशाना, बदलाव का किया दावा। सिलीगुड़ी में ढोल नगाड़ों की थाप पर चुनावी मैदान में उतरे गौतम देव। मोथाबाड़ी कांड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आईएसएफ नेता समेत 3 गिरफ्तार, साजिश का खुलासा। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले सिलीगुड़ी का सियासी पारा अचानक बढ़ गया है। भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और उम्मीदवार गौतम देव के आय के स्रोतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर घोष ने दावा किया है कि गौतम देव द्वारा आय के संबंध में दिए गए बयानों में कई विसंगतियां और संदिग्ध बिंदु है। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता का होना अनिवार्य है। मतदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके प्रतिनिधियों की आय का वास्तविक स्रोत क्या है। गौतम देव को इस संबंध में जनता के सामने स्पष्टीकरण देना चाहिए। महज जुबानी हमला करने तक ही सीमित नहीं रहे शंकर घोष, औपचारिक रूप से एसडीओ कार्यालय भी पहुंचे। वहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई और मामले की गहन जांच करने का आवेदन सौंपा। আমি মূলত এসেছিলাম মাননীয় মেয়র সাহেব, তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে তার আয়ের উৎস সম্পর্কে তিনি আরবিট্রেটরের সাথে যুক্ত এবং সেই জন্য প্রফেশনাল ভাবে তিনি কি বলে অর্থ উপার্জন করেন বলে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং কয়েক হাজার কেস নাকি তিনি এই আরবিট্রেটরের কাজ করেছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে এটাই জানতে এসেছিলাম যে একজন শিলিগুড়ি শহরের বা যে কোনো শহরের তিনি মেয়র তথা মন্ত্রী বা কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্টে থাকাকালীন আরবিট্রেটর হিসেবে তিনি কাজ করতে পারেন কিনা। ধরা যাক শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি আরবিট্রেটর হিসেবে নিয়োগ হচ্ছেন, যেই কাজটা কর্পোরেশনের যে পারভিউ আছে তার মধ্যে পড়ে, ফলে মেয়র হিসাবে তার সেখানে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কিংবা সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি এর আগের দিনও বলেছি, আজকেও বলছি, মেয়র সাহেব তিনি। शिवपुर में भाजपा की जनसभा, समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना। शिवपुर में रैली को संबोधित करते हुए समीक भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने दावा किया कि 4 मई के बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में संघर्ष, अदालत की लड़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना का भी जिक्र किया। वहीं सुभाष चंद्र बोस को लेकर दिए गए बयान से भी चर्चा तेज हो गई है। टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। আমরা তো জানি যে আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সভা করার জন্য 104 বার হাইকোর্টের দরজায় যেতে হয়েছে। আমাদের নেতা অমিত শাহ সভা করবার জন্য আমাদের হাইকোর্টের অনুমতি সভা সমিতি তৃণমূল বন্ধ করে দিয়েছে। তৃণমূল তো সব বিশ্বাস করে না। মুখ্যমন্ত্রী এত তাড়াতাড়ি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন কেন? উনি তো ফাইটার, উনি তো বলেন আপনারা আমাকে ছেলেও ধরতে পারেন, মেয়েও ধরতে পারেন। উনি তো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, উনি তো নরেন্দ্র মোদীকে দিল্লি থেকে উপরে ফেলে দেন। ওনার মুখে সব কথা শোভা পায়। মোথাবাড়ি কাণ্ডে এআইএর হাতে একজন গ্রেফতার। দাদা, মোথাবাড়ি কাণ্ডে গোলাম রাব্বানি গ্রেফতার এআইএর হাতে, এনআইএর হাতে মোথাবাড়ি কাণ্ড। তবে এই মুহূর্তে গ্রেপ্তারের গল্প মানুষ আর শুনতে চাইছে। মানুষের লক্ষ্য স্থির, একদম অর্জুনের মতো লক্ষ্য ভেদ করবে। 26-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিষয়। চন্দ্রনাথ বসু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। তিনি কে? নেতাজির আদর্শ মানছে না বিজেপি, সেই কারণে বিভাজন রাজনীতি করছে। সেই কারণে চন্দ্রনাথ বসু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে। উনি বিজেপিতে ছিলেন কিনা আমার অনেকদিন জানা নেই, তবে এটুকু বলবো পশ্চিমবঙ্গবাসী বা আপনি যিনি আমায় প্রশ্ন করছেন,
सिलीगुड़ी में ढोल नगाड़ों की थाप पर चुनावी मैदान में उतरे गौतम देव। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम देव ने आज एक अनोखे अंदाज में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान समर्थकों के साथ निकले गौतम देव खुद ढाक बजाते नजर आए। अपने प्रचार अभियान को उत्सव का रूप देते हुए गौतम देव ने स्थानीय मतदाताओं से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और समर्थकों के नारों के बीच उन्होंने घर घर जाकर राज्य सरकार की विकास योजनाओं का प्रचार किया। मोथाबाड़ी कांड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एसआईएसएफ नेता समेत 3 गिरफ्तार। मोथाबाड़ी कांड की जांच कर रहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलाम रब्बानी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों में शहादत हुसैन और आसिफ शेख शामिल है। जांच में घटना को पूर्व नियोजित साजिश बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार श्याम चौधरी से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मामले को लेकर इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ওয়ার্কাররা আমাদের সঙ্গে ছিল, সকলে মিলে আমরা সুস্থভাবে সমস্ত কিছু চলছিল, কিন্তু কোনো না কোনো জায়গাতে আমার মনে হয়েছে তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট চক্রান্ত করে তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে, জনসাধারণ তার পাশ থেকে সরে গেছে, তাই তিনি চক্রান্ত করিয়ে এই ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। এবার আপনাদের মনে কোশ্চিন আসবে, রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় এজেন্সির কি সম্পর্ক? কিন্তু কালকে আমার যতক্ষণ আমি ওনাদের তত্ত্বাবধানে ছিলাম, আমার কোনো না কোনো জায়গায় ফিল হয়েছে কি বিজেপি এবং তৃণমূল টাকার এই পিঠ ওই পিঠ এবং আরএসএস একটা সংগঠন দ্বারা পরিচালিত। কালকে আমাকে র্যালি চলাকালীন এনআইএ টিম প্রথমে আমাদেরকে আটকায়, সসম্মানের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি, তাদেরকে কোঅপারেট করি এবং প্রথমে আমাকে তিনারা একটা আই কার্ড দেখান, যিনি যে অফিসার তার আই কার্ড দেখান। दार्जिलिंग के लिए राजू बिष्ट ने भाजपा का विस्तृत मैनिफेस्टो जारी किया। सांसद राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुअर्स क्षेत्र के लिए भाजपा का विस्तृत मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा, मैनिफेस्टो में चाय मजदूरों का कल्याण, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थाओं की स्थापना, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन विकास और किसानों की मदद जैसे मुद्दे शामिल है। साथ ही भ्रष्टाचार खत्म करने, अवैध घुसपैठ पर सख्ती और सामान्य नागरिकता संहिता लागू करने का भी उल्लेख किया गया है। पीएम मोदी का आभार जताते हुए राजू बिष्ट ने इसे क्षेत्र की अनदेखी खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। केही विशेष इश्यूजहरू जुन कुराहरू संकल्प पत्रमा छ र आउँदो दिनमा भविष्यमा यसले हामीहरूका लागि, हाम्रो क्षेत्रका लागि के योगदान दिन सक्छ र हामीहरूको जीवनलाई यसले कसरी प्रभावित गर्न सक्छ र दार्जिलिङ तराई डुवर्सको भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने ती इश्यूजहरूमा तपाईहरुको अनुमति लिँदै जनताको समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त दार्जिलिङ क्षेत्र, तराई डुवर्सलाई लिएर फेरि पनि एकचोटि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने मुद्दालाई प्रमुखताका साथमा बल दिएको छ र यसमा स्पष्ट रूपमा भनिदिएको छ, दार्जिलिङ क्षेत्रको जनताको लागि स्थानीय आकांक्षाको सम्मान गर्दै संवैधानिक ढाँचाको अन्तर्गत स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने यसचोटि पनि फेरि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो संकल्प पत्रमा यसलाई स्थान दिएको छ।
शंकर घोष ने सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया। वे अलग अलग वार्ड, बाजार और रिहायशी इलाकों में गए और आम लोगों से सीधे बात की। उन्होंने स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछा और पार्टी की स्थिति और विकास के वादों पर जोर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मार्च और छोटी मीटिंग के जरिए भी अभियान चलाया गया। उन्होंने मुख्य रूप से नागरिक सेवाओं, सड़कों, पानी और सीवेज, रोजगार और इलाके के पूरे विकास पर चर्चा की। भाजपा उम्मीदवार ने यह भी दावा किया है कि उन्हें आम लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. 5-year warranty, 65+ stores, seamless service. Visit Durian today and exchange I for like the the best. showroom because it's quite huge and you get a proper feel of the thing that you are seeing. The Durian पंजाब स्टेट डियर वसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 18 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2025 लटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता तरसिम लाल। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 में 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, Siliguri. For inquiry call 7699736111। 7 रुपया में 1 करोड़। केवल 7 रुपया में 1 करोड़।
हो 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 રૂપિયામાં કિન્નું હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી ભાગ્ય બદલીને બાટો। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। ममता बनर्जी की तस्वीर हाथ में लेकर चुनाव प्रचार में उतरे पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद ज्योतिप्रिया मल्लिक ने हावड़ा में पहली बारी रैली का आयोजन किया, नेतृत्व भी किया। देशबंधु पार्क में जयगाछी तक निकली इस रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली में उनके हाथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर आकर्षण का केंद्र रही। मल्लिक ने जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता का समर्थन स्पष्ट रूप से उनके पक्ष में है। जलपाईगुड़ी में मतदान से पहले कड़े सुरक्षा इंतजाम, 116 कंपनियां CAPF तैनात। जलपाईगुड़ी में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए CAPF की 116 कंपनियां तैनात की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अमरनाथ के द्वारा बताया गया है कि 48 कंपनियां पहुंच चुकी है, बाकी जल्द आएंगी, जिसे जिले के हर बूथ पर केंद्र बल की तैनाती होगी और चुनाव के बाद भी सुरक्षा जारी रहेगा। যে এবারে আমরা ভয়মুক্ত ভোট করব, আমরা হিংসামুক্ত ভোট করব, আমরা কোনো রকম হুমকি বংশবর্তী হব না, আমরা কোনো রকম প্রলোভন সমর্থন করব না, আমরা কোনো রকম ছাপ্পা ভোটের সমর্থন করছি না, আমরা কোনো রকম বুথ জ্যামিংয়ের আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাকশন আমরা নিচ্ছি। আমরা কাউকে ভোটদানের থেকে মানে যারা কোনো ভোটদান যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা করছি। এইটাই আমি সাধারণ মানুষের সবাইকে আমরা এটা বলতে চাই এবং এর সাথেও আমরা চাই যে যারা যারা আমাদের সরকারি অফিস আছে তাদেরকেও আমরা এই বার্তাটা দিয়েছি এবং প্রতিটি সরকারি কর্মচারীরাও এই যে আমাদের কাছে যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া থেকে যে ইনস্ট্রাকশন আছে সেটা তারা খুবই পরিচ্ছন্ন এবং ভালোভাবে তারা এটার প্রতিপালন করছেন। এই নিয়ে আমরা সবাইকে আহ্বান করতে চাই যে যাতে তারা আগামী 23শে এপ্রিল 2026 সালে তারা ভোট দিতে পারেন, তার জন্য তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। প্রতিটি সাধারণ মানুষ যাতে এসে ভোটদান করেন। এর পরে আমরা একবার सिलीगुड़ी में पारंपरिक चरक पूजा के अवसर पर शहर के एक भव्य और रंगारंग मंगल शोभा यात्रा के साथ गाजन सन्यासियों के स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू सुरक्षा समिति और तपन घोष समिति संसद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस शोभा यात्रा की शुरुआत बागा जतिन से हुई, जिसमें 100 से अधिक चरक समितियों ने भाग लिया। पूरे मार्ग में ढोल और घंटियों की गूंज के साथ गाजन सन्यासियों के पारंपरिक अनुष्ठान आकर्षण का केंद्र बने रहे। यह भव्य जुलूस सिलीगुड़ी के बागा जतिन कॉलोनी स्थित विद्यासागर स्कूल परिसर में जाकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के अंत में एक विचार सभा का भी आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज আমাদের চৈত্র সংক্রান্তির প্রাক্কালে শিলিগুড়ির প্রায় 20 কিলোমিটার সারাউন্ডিং এর মধ্যে যতগুলি চরকের দল আছে প্রত্যেকটি চরকের দলের সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করে ডাকা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে আজকে আমাদের সংগঠন তথা হিন্দু সুরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে 2001 টাকা করে প্রণামী এবং সম্বর্ধনা দেওয়া হবে এবং পূজা সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে। এই যে চরকের পূজা, এই চরক পূজা আমাদের বাঙালির
লোক সংস্কৃতির সুবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এবং এই গাজন উৎসব, এই গাজন উৎসবের ইতিহাস কবে থেকে শুরু হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না, অথচ এই গাজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে কখনো কোনো অনুষ্ঠান করা হয়নি। সেই জন্য আমরা এই গাজন সন্ন্যাসীদের সম্মান দেওয়ার জন্য, সম্বর্ধনা জানানোর জন্য আজ এই বাঘাযতীন কলোনি বিদ্যাসাগর স্কুল ময়দান প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছি। এইখানে আমাদের একটি ধর্মীয় আলোচনা আছে, তারপরে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে যাব। শোভাযাত্রা শুরু হয়েছিল বাঘাযতীন পার্ক ময়দান থেকে, এবং বাঘাযতীন পার্ক ময়দান থেকে কোর্ট মোড় হয়ে ভেনাস মোড় হয়ে আমাদের এই শোভাযাত্রা হিলকার্ট রোডের বুক থেকে এই বাঘাযতীন কলোনিতে বিদ্যাসাগর স্কুল ময়দান প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের সঙ্গে প্রায় যুক্ত আছে 100-র কাছাকাছি চড়কের কমিটি, কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামটি করার কথা ছিল গতকাল অর্থাৎ 12 এপ্রিল। बंगाली नववर्ष से पहले सिलीगुड़ी के बाजारों में बढ़ी रौनक। सिलीगुड़ी में बंगाली नववर्ष से एक दिन पहले ही बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के विधान मार्केट समेत कई बाजारों में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री भी शुरू हो गई है। हालांकि छोटी, मीडियम और बड़ी आकार की मूर्तियां इलाके में खरीदारों को आकर्षित का केंद्र बन रही है। कई लोग नए साल से पहले दिन पूजा कर शुभ शुरुआत करते हैं। वहीं फल बाजार में भी रौनक बढ़ रही है। आम, तरबूज, डाफ समेत विभिन्न फलों की बिक्री तेज हो गई है। এই তরমুজ তো কয়দিন পুরা বৃষ্টি গেল, তো অতটা বাজার ভালো ছিল, এখন গরম পড়তেছে, এখন টুকটাক খাচ্ছে লোকে। কেমন দাম আছে এবার? এই 30 টাকা কিলো বিক্রি হচ্ছে। এটা ব্যাঙ্গালোরের, হ্যাঁ, এটা লাল মিষ্টি গ্যারান্টি। আর যেগুলো লোকাল ওগুলো দাম কম, ওইটা মনে করেন গ্যারান্টি নেই, আর এটা গ্যারান্টি আছে, লাল মিষ্টি পুরা গ্যারান্টি। পয়লা বৈশাখের সময় তো একটা ফলের চাহিদা পরশুদিন, হ্যাঁ, সেই হিসাবে কি বিক্রি শুরু হয়েছে? না, এখনো তো পয়লা বৈশাখের বাজারে লোকে, কালকে চড়ক পূজা আছে, টুকটাক ছোট তরমুজ নিচ্ছে। পয়লা বৈশাখের বাজার তো মনে করেন কালকে হবে। হ্যাঁ, এই হলো ব্যাপার। আমার নাম সনাতন সরকার। পয়লা বৈশাখ তো ফলের বাজার কেমন আছে? ভালো ভালো, আমটাম মিষ্টি আছে, আমের দামও কম আছে। 100 টাকা কিলো, 150 টাকা কিলো আম আছে, মিষ্টি আম আছে, গোলাপ গাছ আছে, লালমনি আম আছে, পুরা মিষ্টি হবে। ডাব তো লাগবে, ঘরে ডাব পূজার ওগুলো ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। বিক্রি ভালোই হচ্ছে? হ্যাঁ, খুব ভালো বিক্রি হতেছে। তো আম কি মালদা থেকে চলে যাচ্ছে? মালদা না, এবার সাউথের আম, কিন্তু মিষ্টি ভালো। 2 মাস থেকে আম বিক্রি হতেছে, 2 মাস থেকে। আমার নাম বাবুল। जलपाईगुड़ी में भाजपा का चाय बागानों में जनसंपर्क तेज। पूना भेंगरा ने झोंकी ताकत। जलपाईगुड़ी के नागराकाटा क्षेत्र में पूना भेंगरा ने चाय बागानों में संघर्ष जनसंपर्क अभियान चलाया। गाठिया और कैरन चाय बागान में श्रमिकों से संवाद कर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और विकास का भरोसा दिलाया। भेंगरा ने दावा किया है कि चाय श्रमिकों का समर्थन भाजपा के साथ है और वे इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। आपके चैनल का सभी दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए, चाय बागान की जब बात होती है तो मैं खुद चाय बागान श्रमिक का बेटा हूँ, और आज भी मैं मेरे पिताजी के क्वार्टर में रहता हूँ। तो चाय बागान का दूर दर्द शायद मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आज का जो टीएमसी का प्रार्थी है, आपने देखा होगा, वो अभी से चाय बागान के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। उनका अधिकार होगा। एसटी फेक सर्टिफिकेट बना को कैंडिडेट खड़ा हुआ है। तो आने वाला दिन हमारे आदिवासी भाई बहनों के, चाय बागान के भाई बहनों के साथ में क्या करेगा, इसका तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, ऐसे छल कपट प्रार्थी को हमारे चाय बागान के लोग वोट नहीं करेगा, जिन्होंने हमारे आदिवासी के अधिकारों को छीना है, धोखा दिया है। बाकी चाय बागान की बात है तो आप देख ही रहे हैं, हमारे सभी चाय बागान के लोगों का जो रिस्पॉन्स है, सभी चाहते हैं जो बागान को बचाना। ये टीएमसी सरकार के कार्यकाल में बागान एक से एक ख़त्म होते जा रहा है। आने वाला दिन ये टीएमसी की सरकार रह जाएगा तो बागान रहेगा कि नहीं, एक सवाल निशाना है। तभी सभी ने ठान लिया है कि चाय बागान को बचाना है तो टीएमसी को हटाना है।